All right. Assalamu alaikum, everyone, and welcome. I can see some of you are already here. Thank you so much for joining us. And let's get started. I'm so excited because we have lots of good things to talk about, and it's very relevant as well. So let's first welcome our guest. We have a good company today. Sahar Humayun. She is a consultant working for Qaid Azam Academy for Education Development. She's also working with Kashf. She's working as a training manager with CAST, Center for Academic Solutions and Teacher Training. So a huge welcome to you. Thank you so much for joining us. How are you? Thank you so much for inviting me for this wonderful session. I'm good, Alhamdulillah, and I hope you are fine and safe. Mhm. Thank you so much. Yes, I am doing good. And we'll be taking questions in a short while. And I've written some questions as well that I had received earlier. So let's get started, shall we? Yes, we should. Okay. So I'll be asking the audience if they can hear me. I hope they can. If okay, so people online, can you hear me? All right. Let me start this watch party for to reach people. All right. So I'm starting it on my timeline. All right. So the first thing that we will talk about is adaptability. So people are finding it difficult to adapt to this online learning. So face to face, because it was natural, people used to learn face to face. They used to go to schools, colleges, universities, teacher training institutions. And now, for many of them, for the first time in their lives, they have to learn online and they're finding it difficult. So how do you think this can change for them or become more comfortable for them maybe? No doubt, it's been a very difficult time for all of us. Probably it's not because for the like private schools or government schools, but overall for the education system in Pakistan, I feel. सो बिकॉज हम लोगों को आदत नहीं है ऑनलाइन टीचिंग की, हम लोग कभी इसके साथ इसको हम करते नहीं रहे हैं, प्रैक्टिस में हमारी ये चीज़ रही नहीं है, तो हमारे लिए भी इसके ऊपर इसको अडेप्ट करना इट्स काइंड ऑफ वेरी डिफिकल्ट. बट आई फील दिस डिफिकल्ट सिचुएशन वुड हेल्प अस टू लर्न समथिंग न्यू, और हम इसके जब बाहर निकलेंगे इन हालात से तो वी वुड बी बेटर टीचर्स एंड बेटर स्कूल लीडर्स आई फील. हम्म. और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने ये फैसला कर लिया है कि अब वो वर्क फ्रॉम होम ही करेंगे. मतलब दे फाउंड इट सो यूजफुल एंड सो प्रोडक्टिव, और इनसे इनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स इस तरह सॉल्व हुए कि नाउ दे डिसाइडेड दैट दे विल बी ओनली वर्किंग, देयर एम्प्लॉइज एंड देयर मैनेजर्स दे विल बी वर्किंग फ्रॉम होम. सो डू यू थिंक इससे हमारी ऑर्गेनाइजेशंस का पूरा एक पैराडाइम शिफ्ट आ गया है और बहुत बड़े बड़े चेंजेस जो हैं हमें अगले 5 सालों में इस क्राइसिस की वजह से देखने को मिलेंगे फॉर द गुड? Yeah, it's really for the good thing because अगर आप देखें तो ये पैराडाइम शिफ्ट जो है वो हमें कहीं ना कहीं ये भी सिखा रहा है कि that how we can save our resources and how we can manage our workload from the home as well, because हमें लगता था कि अच्छा ऑफिस जाएंगे तभी काम होगा, but people learn that they can work from home as well. So this shift is Right. in a good way because they can also give time to their families. They can have like they can learn new things in this time while doing their work from home thing. So it's a Yes. big paradigm shift is like a big, really a positive thing in their lives, I feel. हम्म. ओके, अब वो टीचर्स, क्योंकि हम बेसिकली ये जो हमारा लाइव है फेसबुक लाइव इज फॉर टीचर्स, वी आर डेडिकेटिंग इट टू टीचर्स क्योंकि दे आर स्ट्रगलिंग, क्योंकि ऑनलाइन टीचिंग ऑनलाइन ट्रेनिंग जो है मुश्किल है. ऑफ कोर्स फेस टू फेस के मुकाबले में स्पेशली टेक्नोलॉजिकली हम अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं पाकिस्तान में, तो ऐसे मुल्क के लिए तो टीचर्स के लिए कि वो अडेप्ट कर पाएं इस चेंजिंग सिचुएशन के साथ, हम क्या क्या एडवाइस दे सकते हैं उनको? मुझे लगता है कि इस सिचुएशन के अंदर हमें थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा अपने स्कूल्स की सिचुएशंस को भी, कि हमारे पास जो स्कूल्स अभी पाकिस्तान में मौजूद हैं वो किन स्ट्रीम लाइन्स के अंदर जो है वो फॉल करते हैं. मतलब अगर हम उनको कैटेगराइज करें सो देर आर मल्टीपल स्कूल्स जो कि प्राइवेट स्कूल्स हैं जहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल बीकन हाउस वगैरह, सो दे आर ऑलरेडी conducting online classes with their students, so they are very much adaptable to this situation.
I feel. But there are other medium private schools जिनको हम कह सकते हैं अभी जिन्होंने कभी इसको उस तरह से ऑनलाइन टीचिंग को प्रैक्टिस तो नहीं किया, बट दे डू प्रैक्टिस लाइक वीडियोस शेयरिंग विद देयर किड्स. They do have like LCD in their classrooms or the softboards or the kind of things. So अगर हम उसको कैटेगराइज करें तो नो डाउट बहुत सारे स्कूल्स अगर हम उसकी परसेंटेज देखें तो ऐसे हैं जो अभी इस ऑनलाइन टीचिंग के साथ उस तरह से जो है वो कंफर्टेबल नहीं है, और उन्हें अभी उसमें प्लान करने में भी इश्यूज आ रहे हैं दैट हाउ कैन दे प्लान फॉर दिस न्यू सिचुएशन. बट वी कैन हैव लाइक मल्टीपल अदर ऑप्शंस जिसके ऊपर जिनके ऊपर काम करके दे कैन go with the better teaching and learning situations in their school and classrooms. So probably now we need to rethink and revisit our practices, जो भी हम अभी अपनी current education system के अंदर काम कर रहे हैं, not only for the private schools but also for the government schools, कि जिसमें अभी हमें policy के अंदर भी इन चीज़ों को include करने की जरूरत है कि अगर मुस्तकबिल में जब हम इस तरह के situation से अभी गुजर रहे हैं तो हमें देखना है कि कुछ भी हालात हों हमें कहीं पे भी जो है अपनी टीचिंग और लर्निंग की सिचुएशन को स्टॉप ना करना पड़े, वो इसी तरह से कंटिन्यू रहे. All right. Okay, so I'm looking at some of the questions as well. All right, so yes, absolutely, इसको पॉलिसी का हिस्सा जरूर बनाना है हमें, और हमें ये भी देखना है कि किस तरह हम सपोर्ट कर सकते हैं अपनी सिस्टम को. तो let's move to the next part, which is again technical issues. ठीक है, तो किस तरह के टेक्निकल इश्यूज टीचर्स यूजुअली फेस करते हैं जब वो लाइव आने की कोशिश करते हैं. बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे लर्निंग इस वक्त हो रही है. कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने रिसेंटली ये स्टार्ट किया है कि जी वी शुड गो लाइव एज वेल, और हमें भी जो है अपनी ऑडियंस को ऑनलाइन लाना है या उनको भी बताना है कि ऑनलाइन लर्निंग या ई लर्निंग या डिजिटल लर्निंग जो है इट्स अ थिंग दैट हैज बीन हैपनिंग फॉर डेकेड्स नाउ. तो Pakistan में अभी तक we are facing technical issues. So what advice do you have for your audiences, the people that you've worked with, especially the people who are working with the government sector? क्योंकि वहाँ पे चूंकि हम government जो sector है, I've also worked with them as a trainer. तो वहाँ पे teachers they live in um, all kinds of areas, especially even in Punjab, जो far flung areas है वहाँ पे technology की reach नहीं है. तो what advice can we give them कि वो टेक्निकल इश्यूज के साथ कोप कर सकें और एक जो है एक स्मूथली वो ऑनलाइन जो टीचिंग है उसको कैरी कर सकें? ओके, सो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस. पहली चीज तो जो हमें शायद देखनी है अभी सबसे पहले वो ये कि हम अपना कॉन्फिडेंस लूज ना करें. ज्यादातर लोगों को उस तरह शायद टेक एफिशिएंट भी हैं बिकॉज वी ऑल आर यूजिंग एंड्रॉयड फोन्स एंड लैपटॉप्स एंड डेस्कटॉप, तो हमें उसके साथ फेमिलियरिटी तो है हम सब लोगों की, बट वो एक रिलेक्टेंस है बिकॉज हम लोगों ने कभी पहले ये काम किया नहीं, तो हमें काफी मुश्किल लगता है इसको प्रैक्टिस करना. तो वो एक जो अंदर आपके रिलेक्टेंस है वो या कॉन्फिडेंस आपका लो होता है, उसको छोड़ के हमें थोड़ा सा चीजों को सीखना पड़ेगा, और कोई भी चीज तब तक ठीक नहीं होती है जब तक हम उसे ट्राई ना करें. सो जो भी आपको ऑप्शंस नजर आती हैं अभी वी सी के गूगल क्लासरूम जो है वो बहुत हेल्पफुल है टीचर्स के लिए ऑनलाइन जो है वो टीचिंग करने के लिए. सिमिलरली वी हैव जूम अभी जिसके ऊपर बहुत सारे जो है अराउंड द ग्लोब अभी लोग जूम को प्रैक्टिस कर रहे हैं, इधर इट्स प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स और इट्स लाइक हाई स्कूल्स और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स. वहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस भी हो रही हैं और उनकी असाइनमेंट्स भी उसी के ऊपर सबमिट होती हैं, एंड दे हैव ऑल्सो अडेप्टेड टू द ऑनलाइन असेसमेंट सिस्टम्स अराउंड द ग्लोब. सो वी नीड टू सी कि हम अपनी सिचुएशन के अंदर उसको किस तरह से जो है वो कैरी कर सकते हैं, हमारे पास क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं. सो इसी तरह वी कुड हैव अगर आपको लगता है कि आप जूम की क्लासेस नहीं ले सकते, आपके बच्चों के पास उस तरह के रिसोर्सेज नहीं है जो जिस पे वो जूम को कनेक्ट कर सकें, सो यू कैन रिकॉर्ड शॉर्ट वीडियोस फॉर देम जिसमें आप उनको उनके लेसन्स के अकॉर्डिंग जो है वो ब्रीफ सा एक एक्सप्लेनेशन और लास्ट पे कोई ऐसे एक या दो सवालात छोड़ दें उनके लिए जिसके ऊपर वो काम कर सकें एज प्रोजेक्ट और एज टास्क और असाइनमेंट. और वो शॉर्ट वीडियोस आप उनको व्हाट्सएप कर सकते हैं जिसके ऊपर वो आप उनके पेरेंट्स के नंबर के ऊपर जिससे वो आपसे कोऑर्डिनेट करें. And similarly, if their parents don't have WhatsApp's Android phones for the WhatsApp, so you can send them text messages जिसके ऊपर आप उनको 2 या 3 ऐसे सवाल जिसके ऊपर students can like work on
and they can send you back a message with their questions or queries. So you can also call them back for the solution or help that they can get from you. So we need to think about Right. the situations or the regions and how we can like cope up with the situation in different regions with respect to the situations or scenarios. Right. So basically, we have to learn how to have a plan B or even a plan C or plan D for that matter, right? So Exactly. जैसे आपने बताया अपने मोबाइल फोन से अपने स्मार्टफोन से वीडियो बनाना which is I think very convenient for everybody, we all have smartphones, तो उस वीडियो क्लिप को रीसाइज करके व्हाट्सएप पे भेजना अपनी ऑडियंस को I think it's very convenient and it's something that teachers can start doing right away, even those teachers जो कि बहुत फार फ्लंग एरियाज में रहते हैं जहाँ लोगों को इंटरनेट टूल्स के साथ अवेयरनेस नहीं है, फेमिलियरिटी नहीं है, एंड दे आर अ बिट स्कैर्ड. So I read in a book recently कि दो तरह के लोग हैं, and I think that I've learned about myself as well कि digital natives and digital immigrants. So I personally believe, although I know all the tools and I'm somehow comfortable with them now, but I belong to an era where there was no internet. When I was born and when I was during my college, there was no internet. So I somehow think that I'm also a digital immigrant. So it is kind of a scary thing for me as well. But I'm learning to do it. It's all about adapting to new things. And तो हम टीचर्स को ये जो नए हमारे पास एडमोडो का प्लेटफॉर्म है, एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म जो ब्रिटिश काउंसिल की ट्रेनिंग्स में भी इस्तेमाल करते हैं, और जूम है, इन तमाम प्लेटफॉर्म्स, अगर ये हमने टीचर्स को सिखाने हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसा क्या करें कि हमारे टीचर्स इनको सीख जाएं. Okay, so I would like to add a thing here because we at Kashf are trying to move towards online training, teachers training. And we Mhm. also know that teachers are not at all adaptable with the Zoom learning or conferencing thing. So what we did, we developed a simple module for them in both languages, English and Urdu, with the screenshots of the app that how they can adapt to the Zoom meetings. And similarly, we have Right. developed videos for them, very short videos for them, just to help them out that how they can download the Zoom app and how they can go online with it and how they can use their camera, their mic, or the chat, similar things. Mm. So there's similar short videos or modules which are now easily available, I feel, and the biggest platform I feel is the YouTube. अगर आप YouTube पे चल जाएं तो देर आर मल्टीपल ट्यूटोरियल्स जहाँ से आपको बहुत इजीली डाउनलोड करने के लिए और उसको यूज करने के लिए जो है उस ऐप को बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस मिल जाती हैं. और आजकल मुझे लगता है हम सबका सबसे बड़ा जो टीचर है वो गूगल है बिकॉज वी आर लर्निंग अ लॉट फ्रॉम दैट कि हम ट्यूटोरियल्स देखते हैं एंड वी ट्राई ईच एंड एवरीथिंग कि अच्छा किस तरह से वो चाहे आप सिंपल हवातीन का देख लो कुकिंग से लेके और डिफिकल्ट चीजें जो भी हम टेक एफिशिएंट हो रहे हैं ग्रेजुअली इस नई सिचुएशन के साथ तो यूट्यूब हमें बहुत हेल्प कर रहा है सिचुएशन में भी. राइट. एंड यहाँ पे मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगा, जैसे आपने कहा कि यूट्यूब, तो एक बहुत बड़ा ग्रुप है खान एकेडमी. तो खान एकेडमी का जो ये जो आइडिया कंसीव कैसे हुआ और ये आइडिया कैसे आगे चला, वो ये था कि ये जो इनके फाउंडर हैं खान एकेडमी के, उनके नेफ्यू या नीस को, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर, हेल्प की जरूरत थी विद मैथ्स. तो उस जमाने में व्हाट ही यूज्ड टू डू वाज, क्योंकि वो एक सिटीज में नहीं थे, ही वाज लिविंग अब्रॉड, और उनकी जो नेफ्यू या नीस थे, आई एम नॉट श्योर, वो दूसरे मुल्क में थे. तो ही यूज्ड टू मेक वीडियोस और वो पोस्ट कर देते थे वो वीडियोस क्वेश्चन सॉल्व करके, और वो जो उनका था, उनके जो बच्चा था, वो उसको देख लेता था ऑनलाइन और उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता था. तो आइडिया केम टू हिज माइंड कि हम ये इंटरनेशनली या ग्लोबली क्यों नहीं कर सकते कि लोग अपने अपने सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट लोग हैं वो अपनी वीडियोस बनाएं और वो ऑन पोस्ट करें, और उसके बाद जिन लोगों को वो हेल्प चाहिए वो उसको हासिल कर लें. तो मेरा ख्याल है कि ये जो आइडियाज हम शेयर कर रहे हैं, अगर इनको इन पे काम करना शुरू कर दें, या एटलीस्ट हम इतने कंफर्टेबल हो जाएं कैमरा के साथ कि जिस शख्स को जो भी आता है वो उसको लोगों के सामने प्रेजेंट कर सके, तो उससे क्या होगा एग्जैक्टली. कि बहुत सारे लोगों को फायदा होगा, और ये फायदा बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री होगा. इसके लिए कोई चार्जेस नहीं. मेरा ख्याल है कि लर्निंग शुड बी एब्सोल्युटली फ्री. लेकिन चूंकि आपका बहुत ज्यादा टाइम लगा हुआ होता है और आपके बहुत सारे रिसोर्सेज भी खर्च हो रहे होते हैं,
तो जितना अगर कोई कर सकता है, अगर कोई पे कर सकता है तो वो जरूर करे, ठीक है। लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि वी शुड मेक इट अवेलेबल फॉर पीपल। व्हाट डू यू थिंक? Exactly. Exactly, you are very right. So as you were talking about the Han Academy, so different names are coming to my mind. So there are other platforms also जो कि आपको online lessons जो हैं जिसपे जहाँ पे आपको मिल जाते हैं, सबक फाउंडेशन को आप देख लें, जिस तरह LMS systems जो है वो learning management systems डिजाइन किए गए माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, इसी तरह जो है वो knowledge platform की तरफ से, अगर कुछ schools पे कर सकते हैं so they can buy their LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जहाँ पे उनकी ऑनलाइन जो है वो लेसन्स भी डिलीवर होंगे, उनकी असेसमेंट्स भी पड़ी होंगी बच्चों के लिए। सो अगर आपको मतलब कुछ टीचर्स ऐसे जो कि बहुत अच्छे हैं, अपने नॉलेज कंटेंट एक्सपर्टीज है उनकी किसी भी सब्जेक्ट के साथ, सो दे कैन डेवलप शॉर्ट वीडियो। सिमिलरली देयर वाज वन थिंग दैट केम टू माय माइंड इज there are different academies who are currently working on different short videos regarding the topics, उसमें चाहे आप इंग्लिश ग्रामर के हैं और मैथ के हैं या इसी तरह से, सो दे आर पोस्टिंग इट ऑन द यूट्यूब एंड ऑन देयर पेजेस एज वेल, जो कि बहुत फ्री हैं। और उन्हीं पेजेस के वो जो वीडियोस के जो लिंक्स हैं वो हम अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं, जहां हमें लगता है कि वो चीज़ उनके साथ हेल्प आउट करेगी। तो सिमिलरली ई लर्निंग पंजाब का जो हमारा है, वहाँ पे आप वी नो एवरीवन नोज के वहाँ पे बहुत सारी Absolutely, वीडियोस yes. ऐसी अवेलेबल हैं। सो दैट्स रियली लाइक फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कुछ स्पेंड नहीं करना पड़ता, एंड that's very compatible to the national curriculum, so you can use it with any of the curriculum or textbook that you are currently teaching in your school, because आप concepts उठा लें और आप concepts के according उसको plan कर लें। So this is very good thing। मेरा हाल है जो हम different platforms को जो अभी explore करना जरूरी है। अगर हम ये सोचें कि कुछ कर नहीं सकते, इतने मुश्किल हालात हैं, तो फिर शायद चीजें और डिफिकल्ट हो जाएंगी, बट हमें एक्सप्लोर करने की जरूरत है, लोगों से कनेक्ट करने की जरूरत है कि वो हमें मजीद आइडियाज जो है वो जरूर शेयर करें, ताकि एक दूसरे की जो है वो हेल्प होती रहे। राइट। और YouTube पर स्पेशली आई हैव नोटिस कि तमाम लैंग्वेजेस में कंटेंट मौजूद है, तो आप किसी भी तरह की अगर आप लर्निंग करना चाहते हैं, कोई आप प्लेटफॉर्म के बारे में सीखना चाहते हैं, कोई स्किल सीखना चाहते हैं, तो आप YouTube पर अपनी कंफर्टेबल जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं आप उसमें जाके ट्यूटोरियल्स फाइंड कर सकते हैं और आप उस चीज़ को सीख सकते हैं। अच्छा, तो कास्ट के प्लेटफॉर्म से हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि लोगों को इन टूल्स को ना सिर्फ समझने में मदद मिले, बल्कि लोग जो हैं वो ऑनलाइन आने में मजीद कंफर्टेबल फील करें, और ये जो ऑनलाइन लर्निंग है इसमें कास्ट कौन सी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो है वो ऑफर कर रही है? I guess anyone from the school leaders or teachers who are really willing to learn and who are really motivated to do something for the education system in Pakistan right now, CAST would provide them a platform to do that. So if they create any content, or if they do have any like support links or which can help us out to like to educate their like content or the message to the other teachers or school leaders or the kids or students, जहाँ पे भी उन्हें हेल्प हो सके, सो वी वुड लाइक अप्रिशिएट अगर कोई भी हमें ऐसा कंटेंट शेयर करता है तो हम उसको जरूर शेयर करेंगे खास के प्लेटफॉर्म से, ताकि लोगों को बहुत सारी हेल्प मिले। Or if they are willing to learn, so we can also design some online courses for them, जहाँ पे वो आए और सीखें नई जितने भी टूल्स और अभी जो है वो एप्स या सॉफ्टवेयर जो है वो इस्तेमाल किए जाए इन तमाम सिचुएशन के अंदर। राइट। ओके, तो तमाम कोर्सेज जो हम पहले ऑफर कर रहे थे फेस टू फेस, अब वो ऑनलाइन अवेलेबल हैं। एग्जैक्टली वो अब आपको ऑनलाइन तमाम कोर्सेज अवेलेबल हैं और उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग ही जो है वो अडेप्ट किया गया है। बिकॉज ऑब्वियसली जब हम ऑनलाइन ट्रेनिंग की बात करते हैं या फेस टू फेस जब ट्रेनिंग जो हो रही होती है वो टोटली ऑनलाइन ट्रेनिंग उसके ऑपोजिट होगी। सो व्हाट ऑप्शंस एंड वी वुड अडॉप्ट एट दैट टाइम जब ऑनलाइन ट्रेनिंग हो रही होगी, और क्या टूल्स इस्तेमाल किए जाएंगे जिससे उनको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी मिले, वो उस चीज़ पे रिफ्लेक्ट भी कर सकें, उन्हें ऐसा ना लगे कि वो आए हैं और सुनकर चले गए हैं, बट वो उस चीज को प्रैक्टिस भी करें एट द सेम टाइम उसी सिचुएशन सेशन के अंदर। राइट, एब्सोल्युटली। ओके, अब आई रिक्वेस्ट जो और हमें लोग देख रहे हैं, देयर करंटली आई कैन सी 20 पीपल, तो प्लीज स्टार्ट पोस्टिंग योर क्वेश्चंस। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी जो लोगों ने पूछे हैं वो लिखे हुए हैं, तो वो मैं साथ साथ शेयर करता रहूंगा, डिस्कस करता रहूंगा। बल्कि आप में से कोई अगर आंसर करना चाहे क्वेश्चंस को या अपना कोई शेयर करना चाहे एक्सपीरियंस, तो यू आर मोर देन वेलकम टू डू दैट। अच्छा, एक चीज, although I felt, I've noticed, I've experienced it myself, और लोगों ने भी बताया है, और I've been noticing it since this pandemic, कि
तमाम एरियाज जो हैं टीचर ट्रेनिंग के स्पेशली उनको ऑनलाइन डिलीवर किया जा सकता है। मतलब पहले जो फेस टू फेस के हमें हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे वो ऑनलाइन ट्रेनिंग और टीचिंग के जरिए भी पॉसिबल है, एक्सेप्ट वन एलिमेंट जो कि है असेसमेंट का। आपने आपने अपने कॉन्सेप्ट्स जो है वो डिलीवर कर दिए, आपने अब असेस करना है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी थी, और उसके बाद आपने जो आप उनकी जो लर्निंग है उनको असेस करना है। तो असेसमेंट में मैनी टीचर्स एंड ट्रेनर्स फील कि ऑनलाइन थोड़ा सा मुश्किल उनको पेश आ रही है। तो असेसमेंट हम कैसे इजी बना सकते हैं टीचर्स के लिए, ट्रेनर्स के लिए, ताकि वो ऑनलाइन भी अब स्टूडेंट्स की और टीचर्स की और ट्रेनीज की परफॉर्मेंस को असेस कर सकें और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कर सकें। Okay, so if you can look over the other apps जो भी हमारे पास जिन पे भी currently हम थोड़ा सा काम भी किया है और उसको explore मजीद भी कर रहे हैं, and we have like practice it with the different teachers and with the persons of different organizations. So currently जिसमें अगर आप बात करें तो अगर हम Zoom इस्तेमाल करें, so there is an option of poll जहाँ पे आप poll ले सकते हैं. So you can develop polls, मतलब questions जिसके ऊपर आप लोगों से पोल ले लेते हैं, दे कैन लाइक प्रोवाइड यू, टेल यू के उनकी जो भी लर्निंग हुई है उसके अंदर। सिमिलरली अगर हम उसमें मेंटीमीटर, एक देयर इज एन ऐप जो कि आपको इसी तरह जो है आप उस पे डिफरेंट जो है जो भी आपके ऑप्शंस है आप उसको आंसर कर सकते हैं। सो अ थर्ड ऐप विच आई नो इज Moodle, जिसके ऊपर Moodle के ऊपर यू कैन लाइक डिजाइन अ लिटिल वेरी शॉर्ट कोर्स जो कि ऑनलाइन ट्रेनिंग की तरह से होता है। वो एक आपका एक कोर्स होता है, आप जाते हैं उसको पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो उसी के अंदर रहते हैं, यू जस्ट आंसर देम, और उसी वक्त जैसे ही आप अपना शॉर्ट कोर्स वो कंप्लीट करते हैं आपका रिजल्ट जो है वो पब्लिश कर दिया जाता है, बिकॉज वो आपने जो भी पढ़ा है आपके साथ साथ असेसमेंट भी हो रही होती है। So there are multiple ways through which we can assess the impact of online teaching or training, जहाँ से हमें पता चल जाता है कि learning जो है वो कितने % हो गई है, and what are the तो ये areas we can work on further. ग्रेट। सो ये जितने भी टूल्स हैं जिनका आपने जिक्र किया, ये सारे एब्सोल्युटली फ्री अवेलेबल हैं, राइट? Exactly. हम्म। तो मैंने ये नोटिस किया है कि बहुत सारे फैसिलिटीज फ्री होने के बावजूद हमारी जो टीचिंग कम्युनिटी है और इवन कुछ ट्रेनर्स भी, दे डोंट नो कि ये टूल्स कौन से हैं और उन टूल्स से कैसे फायदा उठाया जा सकता है। तो क्योंकि मोस्टली लोग सिर्फ जूम से वाकिफ हैं, स्काइप से, तो हम ये जो तमाम टूल्स हैं, ये डिजिटल टूल्स जो कि फ्री हैं लर्निंग के लिए और टीचिंग के लिए, इनके बारे में हम लोगों को कैसे अवेयरनेस दे सकते हैं? व्हाट डू यू थिंक? क्या इनके बारे में कुछ ट्यूटोरियल्स बनाए जा सकते हैं कास्ट के प्लेटफॉर्म से, जो कि लोगों को दिए जा सकें, या उन एक प्लेटफॉर्म बनाया जा सकता है अलग से फेसबुक पे जहाँ पे लोग अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकें इन इन डिजिटल टूल्स के बारे में? Yes, that's a very good idea. We can post, we can ask people or participants to post their questions. So हमें idea हो कि उन्हें किस तरह की चीज़ों के बारे में support चाहिए. So we can make little tutorials about those apps or things, or we can give them like some handouts जहाँ से उनको थोड़ा सा help out हो जाए कि वो किस तरह इन चीज़ों के बारे में बेहतर काम कर सकते हैं. Similarly, another one thing was coming to my mind कि अगर हम simple सी एक चीज़ देने assessment के अंदर अगर आपको है तो WhatsApp हम सब लोग बहुत frequent use करते हैं और दिन रात यूज करते हैं। सो व्हाट्सएप पे भी देयर इज एन ऑप्शन जहाँ पे आप कोई भी मैसेज जो है ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। इफ यू हैव लाइक डेवलप्ड अ ग्रुप ऑफ योर ओन लाइक स्टूडेंट्स और टीचर्स फॉर एन ऑनलाइन ट्रेनिंग, तो आप क्या करेंगे, जो भी आप मैसेज ब्रॉडकास्ट करेंगे वो उस ग्रुप के तमाम टीचर्स तक चला जाएगा उस ग्रुप के थ्रू, बट द आंसर जो भी वो टीचर्स या स्टूडेंट्स आपको जो आंसर दे रहे होंगे वो आपको सेपरेटली इंडिविजुअली रिसीव होंगे, जिसके ऊपर आप उन्हें कमेंट या फीडबैक दे सकते हैं या उनको फर्दर असेस कर सकते हैं। तो देर मतलब चॉइसेस आर वेरी ओपन, बस उसमें ये कि हमारी विलिंगनेस टू लर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, एब्सोल्युटली। तो विलिंगनेस इज द फर्स्ट थिंग। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। हमसे आसिया पूछ रही हैं कि ऑनलाइन सेशंस फॉर केजी स्टूडेंट्स is a big challenge for working mothers because kids don't sit to any online sessions in absence of parents. Now, I absolutely agree with that because it's very, very difficult for young children to focus and concentrate, especially during a digital classroom. So, what advice do you have? I have some insight and wisdom to it as well, but let me ask you first how to engage young children in a digital classroom. I'm sure you would have like surely a lot of ideas, but Yes. the one thing that I just recently saw was there was an amazing video of a teacher which she posted on Facebook.
and that was Mhm. she was like teaching to the KG or nursery kids. They were like very little ones. So she was like Mhm. performing a poem with them, and every one of them Okay. was acting, except a few kids who doesn't want to like perform in the classroom as well, I feel. सो Okay. इट हैपेंस आई फील बच्चों का अपना मूड होता है हर वक्त वो आपके साथ उस तरह से Mhm. रिएक्ट नहीं करते छोटे बच्चे क्लासरूम में भी जैसा कि उन्हें करना चाहिए जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो आपसे करें आपके साथ जो है वो कॉपरेट करेंगे सो इट शुड Mhm. बी इन अ फन वे कि बच्चा उसको एंजॉय Mhm. करे उसको इस तरह से बहुत डायरेक्टिव टीचिंग जैसे हम क्लास में एक फेस टू फेस टीचिंग कर रहे होते हैं ये उस तरह की सिचुएशन नहीं होनी चाहिए बिकॉज जब उस Mhm. तरह की सिचुएशन होगी ऑब्वियसली इट वुड गेट बोरिंग फॉर द किड और वो उसमें It अटेंशन या would, फोकस yes. नहीं रहेगा Mhm. तो इट शुड बी वेरी लाइवली सेशन जहाँ पे आप उनकी भी जो है उनसे बातचीत भी करें उनका जो है वो फीडबैक भी लेते रहें दैट व्हाट डिड दे लाइक द बेस्ट एंड व्हाट कुड बी चेंज इन द नेक्स्ट क्लासरूम or what would they want to learn in the next classroom so rather than Mhm. like completing our syllabus the focus should be on engaging the kids and improving them Yes. in some other aspects matlab in some other skills which they can learn at their homes Mhm. I feel so this is very important Absolutely. यानी हम अपने जो सिलेब आए हैं उसको कवर करने के बजाय लर्निंग पे फोकस करें और चूंकि इट्स एन अर्ली स्टेज तो हम बच्चों की बहुत ज्यादा लर्निंग पे फोकस करने के बजाय अगर हम सिर्फ उनको ये सिखा दें कि आपने 1 और 2 आवर्स के लिए कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठना कैसे है ठीक है तो इट वुड बिकम हेल्पफुल क्योंकि टीचर्स बट मोस्ट ऑफ द टीचर्स आई हैव नोटिस ट्राइंग दे आर ट्राइंग टू टीच ओके सो टीचिंग मेरा ख्याल है डिजिटली अगर आप टीच करें स्पेशली एट दिस स्टेज जहाँ पे बच्चे दे आर नॉट एबल टू गो आउट एंड दे कैन नॉट लेट ऑफ ऑल द स्टीम एंड अपनी जो एनर्जी है उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे दे फील कंस्ट्रक्टेड विद इन द फोर वॉल्स तो उस फ्रस्ट्रेटिंग दौर में स्पेशली यंग बच्चों के लिए आई कैन रियली फील फॉर देम बट लर्निंग को इंगेजिंग और फन बनाया जाए Hmm. कुछ गेम्स Exactly. हो कुछ वीडियोस हो आप जिस वीडियो की बात कर रहे थे उसको भी हम कमेंट्स में उसका लिंक डाल देंगे ताकि टीचर्स उसको देख सकें और उससे उनको फायदा हो और प्लस ये है कि I feel कि instead of pushing them or focusing too much on the concepts, what they should do is they should focus on uh, learning is fun concept first for some time. जब वो आदी हो जाएंगे तो फिर उसके बाद of course they can focus on more serious content और जो concepts उन्हें teach करने हैं इनिशियली बच्चों को ये नहीं लगना चाहिए कि it's something because they are being noticed वो स्क्रीन के सामने है क्लास में तो they get overlooked और उनकी छोटी जो idiosyncrasies हैं वो overlook हो जाती हैं लेकिन जब वो होते हैं online digital so they feel like they're being supervised so Exactly. it's not easy even for adults they feel it difficult to adjust to digital environment तो बच्चों के लिए तो of course it would be difficult तो मैं ये समझता हूँ कि learning should be fun initially तो प्राइमरी से आसिया आपका क्वेश्चन जो है I can really relate with that because I've been struggling with my very young kids as well क्योंकि they're not comfortable learning online so what we can do is we can try and make it comfortable for them initially. Okay, I would request कि जो लोग watch party के ऊपर questions कर रहे हैं, I'm sorry, अगर आप direct live video पर आकर जो Facebook page के ऊपर आकर comment करेंगे, तो I'll be able to show your comments to other people as well. हो सकता है वो relate कर पाए आपके questions के साथ. So if you could please, instead of commenting on my Facebook profile, if you could go to the page and comment there, then I'll be able to showcase your questions as well. अच्छा जी कुछ और questions लेते हैं सुमेरा कह रही हैं I'm from Bahawalpur uh, the financial situation of parents of my school even many parents have no simple keypad phone so how can I work in this situation of COVID-19 okay now this is a serious question कि उन Okay. teachers के पास phones भी नहीं है and I know because I've worked with the organization that Sumaira is working with, or I know कि ऐसे areas भी हैं tough areas जो बिल्कुल slum areas हैं जहाँ पे लोगों के पास जो basic human needs जो है वो भी उनके पास पूरी नहीं है but they're willing कि उनके बच्चे पढ़ें तो ऐसे environment में now it's a very difficult question to answer but anything that we can say. Okay. So Sumaira, thank you for this difficult question because मुझे लगता है कि इस question से बहुत सारे लोगों का जो है वो उनको solution मिलेगा कि what they can do is
इस नो टेक सिचुएशन के अंदर, जहाँ पे टेक्नोलॉजी जो है वो टीचर्स के पास और पेरेंट्स के पास अवेलेबल नहीं है कि वो बच्चों के साथ कनेक्ट कर सकें। सो आप लोगों को सबको पता होगा कि टेली स्कूल जो है वो पीटीवी होम के ऊपर जो है वो अपनी नशरियात का आगाज कर चुका है, और सुबह 8 से दोपहर 4 बजे तक प्रॉब्लम उनकी क्लासेस होती हैं, एंड दे हैव डिवाइडेड द टाइम फॉर द प्राइमरी स्कूल किड्स एंड द एलिमेंट्री स्कूल किड्स एंड सिमिलरली फॉर द सेकेंडरी स्कूल किड्स। तो अगर आपको लगता है कि आपके पास इस तरह की सिचुएशन है टफ, जहाँ पे बच्चों के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तो यू शुड प्लान according to the tele school lessons which are being delivered on the Pakistan television right now. So what you have to do कि आप अपनी किताबें उठाएं और उसके साथ देखें कि टेली स्कूल अभी क्या जो है वो नशरियात जो है वो नशर कर रहा है। आप उसके अकॉर्डिंग अपने बच्चों के कॉन्सेप्ट जो है वो उनको बताएं कि ये टाइम से ये टाइम तक ये बच्चे ये देखेंगे, जो भी लेसन उस पर डिलीवर हो रहा होगा, और फिर आप उसी लेसन के अकॉर्डिंग बच्चों को कोई छोटा सा 1 या 2 सवाल दे सकते हैं। एक चीज जो बहरहाल हम सबको ज़हन में रखने की ज़रूरत है कि हमें बिल्कुल ये नहीं समझना कि ऑनलाइन टीचिंग के ऊपर जब हम शिफ्ट करें तो ये एकदम से 100% सब कुछ करेक्ट होगा और वैसा ही होगा जैसे कि डायरेक्ट एक फेस टू फेस क्लासरूम के अंदर होता है। सो थिंग्स टेक टाइम। और अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि बच्चे ऑनलाइन लेसन्स के अंदर जो है वो इंगेज नहीं करते, फोकस नहीं होते, अटेंशन नहीं देते, तो वहाँ पे हमें अभी ये सोचना है कि उनको सिर्फ इस चीज़ का आदी बनाया जाए, इस सिचुएशन का। तो अभी जो हम अगर अपने एक नॉर्मल क्लासरूम में भी देखें, तो अगर हम एक वीक के अंदर 8 लेसन जो है वो प्लान करते हैं कि हमें इंग्लिश के पढ़ाने हैं, तो बाजूकात हम उसको नहीं कर पाते, हम सिर्फ 6 लेसन डिलीवर कर पाते हैं। तो ऑनलाइन टीचिंग अभी क्योंकि बहुत नई है, तो हमें शायद अभी वो 8 की बजाय वो 6 भी नहीं, शायद 3 डिलीवर कर पाए उस वीक के अंदर। तो एक तो हमने ज़हन में रखना है कि फ्लेक्सिबिलिटी इज़ द फर्स्ट एलिमेंट, जो हम इसको भी हमने साथ-साथ लेके चलना है। फिर वो टेली स्कूल के साथ जब आप अपना प्लान बना लें, तो आपको उसमें होमवर्क भी जो देना है या टास्क भी जो असाइन करना है, इट शुड बी वेरी लिमिटेड, वेरी ब्रीफ, क्योंकि वहाँ पे बच्चों के पास टीचर की सुपरविजन और गाइडेंस नहीं है। तो आप कोई ऐसा काम उन्हें असाइन ना करें जो वो टीचर के बगैर नहीं कर सकते, बिकॉज़ देयर पेरेंट्स कांट हेल्प देम आउट इन सॉल्विंग दोज़ प्रॉब्लम्स और कंप्लीटिंग दोज़ टास्क। तो वो हमें बहुत समझदारी से उसको प्लान करना है। या अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसे सिचुएशंस भी होंगे, आई एम श्योर, प्रीटी श्योर, कि जहाँ पे बच्चे जो हैं वो टेलीविज़न की भी उनके पास सहूलियत मौजूद नहीं है। तो व्हाट यू कैन डू इज़ कि आपको कुछ ऐसे ईज़ी प्रोजेक्ट्स उन बच्चों को असाइन करने हैं, जो कि आप एक पेज के ऊपर लिखते हैं और उसकी फ़ोटोकॉपी करा के अपने स्कूल में या किसी भी ऐसी नेबरहुड में कोई शॉप आपको लगता है जहाँ पे बच्चे या उनके पेरेंट्स उसको ईज़िली एक्सेस कर सकते हैं, आप वहाँ पे वो फ़ोटोकॉपीज़ रखवा सकते हैं। एंड यू कैन आस्क देम कि वो अपनी क्लास वाइज़ के अकॉर्डिंग, क्लास के अकॉर्डिंग वो जाएँ और अपने फ़ोटोकॉपी रिसीव कर लें, जिस पे यू कैन गिव देम प्रोजेक्ट्स कि आप कोई लेट्स से एक पौधा उगाएं अपने घर के अंदर, उसकी ग्रोथ को जो है वो मॉनिटर करें और देखते रहें वो कितने दिन में बढ़ता है और क्या-क्या कंडीशंस उसको ज़रूरी थी बढ़ने के लिए। सिमिलरली यू कैन आस्क देम कि आप हर दिन में जो है वो 2 नए लफ्ज़ सीखें, इट कुड बी देयर मदर लैंग्वेज, जो भी उस इलाके की कोई लैंग्वेज है वो भी हो सकती है, 2 नए लफ्ज़ सीखें और उससे कोई जुमले बनाएँ। और दे कैन रिकॉर्ड मेक अ जर्नल, जिसमें वो अपने कोई डेली एक्सपीरियंस, जो भी फन एक्सपीरियंस होता है या कोई भी नई चीज़ सीख रहे हैं, वो उसके अंदर जो है वो रिकॉर्ड करते हैं। एंड इट शुड नॉट बी अ वेरी डिटेल्ड पैसेज और लाइक एन एसे, बहुत ब्रीफ सी चीज़ जो बच्चा सिर्फ उस पे फोकस कर रहा हो। और एंड वन मोर थिंग इज़ कि शायद वो सिर्फ किताबों से रिलेटेड लर्निंग नहीं होनी चाहिए। इट कैन बी एनी अदर स्किल, वो कुकिंग हो सकती है, वो गार्डनिंग हो सकती है, वो साइक्लिंग हो सकती है, कुछ भी, रीडिंग हो सकती है। सो कोई भी ऐसी चीज़ से जो बच्चों को एंगेज करे इस टाइम के अंदर, वो बहुत ज़रूरी है। ओके, अब चूंकि जो फोकस था वो शिफ्ट हो गया है, तो अब टीचर्स जो थे दे आर नॉट एबल टू सुपरवाइज द स्टूडेंट्स एनी मोर, तो अब पेरेंट्स के पास आ गई डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पेरेंट्स को कैसे हम गाइड या काउंसिल कर सकते हैं कि वो बच्चों को घर में उनकी लर्निंग को फैसिलिटेट करें? बहुत सारे सोल्यूशंस हमने इवन बहुत डिफिकल्ट एरियाज के लिए भी शेयर किए, लेकिन ये सब नहीं हो पाएंगे अगर पेरेंट्स जो है वो टीचर्स के साथ कोऑपरेट नहीं करते। तो व्हाट कैन वी डू, हाउ कैन वी रीच पेरेंट्स, पहली बात। और दूसरा ये कि पेरेंट्स को कैसे काउंसिल किया जाए कि वो बच्चों की लर्निंग नीड्स को करें, एड्रेस करें और उनको हेल्प करें कि वो ज़्यादा लर्न कर सकें एट होम। ओके, सो इस टाइम पे पेरेंट्स को मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ वी ऑल नो कि हम जो पेरेंट्स हैं या हम सब भी अभी बहुत सारे फाइनेंशियल क्राइसिस से भी गुजर रहे हैं। तो शायद अभी पेरेंट्स के लिए भी उस तरह से टेंशन देना बच्चों के लिए, बच्चों को मुश्किल है।
कि वो उन्हें है कि हम खुद इतनी परेशान जो है वो सिचुएशन में से गुजरे, तो हम बच्चों को अभी क्या तवज्जो दें या क्या कर सकते हैं। सो इसमें हमें टीचर्स को, स्कूल लीडर्स को, प्रिंसिपल्स को हमें बहुत जो है वो थॉटफुली चीज़ें प्लान करनी है, हमें उन्हें मोटिवेट करना है। वी नीड टू मेक देम कॉल्स कि ये जो वक्त है ये आपके बच्चे का क्योंकि वेस्ट हो रहा है, तो वी डोंट वांट कि इसका इतना कीमती वक्त जो है वो ज़ाया हो जाए। तो उसको हेल्प करने के लिए, मतलब उस टाइम को जो है वो सही तरीके से यूटिलाइज करने के लिए हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, पेरेंट्स की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो बिकॉज़ हम इस मुश्किल वक्त में बच्चों का साथ देने के लिए खड़े हैं, तो आपको भी चाहिए कि आप उसी तरीके से बच्चों का साथ दें। और हमें वो जो भी चीज़ें हम प्लान कर रहे हैं, उस पे हमें उनकी मदर्स को ज़रूर जो है वो उस पे एजुकेट करना है कि क्या चीज़, और वो फिर वही एक चीज़ कि हमें ये ज़हन में रखते हुए वो चीज़ें प्लान करनी है कि जो उनके जिस चीज़ों के ऊपर पेरेंट्स घर में ईज़िली बच्चों को काउंसल कर सकें। और फिर दूसरी चीज़ कि वो कोई भी ऐसी स्किल जो मदर इजीली घर में बच्चों को सिखा सकती हैं, जो या जो फादर के पास घर में टाइम अवेलेबल है और उनको कोई स्किल आती है, वो बच्चों को सिखा सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि फैमिली कनेक्शंस भी इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो बच्चों को अगर हम ये भी सिखाते हैं कि फैमिली कनेक्शंस जो हैं वो कितने अहम हैं और उनको कैसे आप अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इस मुश्किल वक्त के अंदर कनेक्ट कर सकते हैं, सो ये एक एलिमेंट सिखाना भी शायद इस वक्त के अंदर बड़ा ज़रूरी है। तो हमें पेरेंट्स को बताना पड़ेगा कि हर वो चीज़ या हर वो काम जो भी हम कर रहे हैं वो बच्चों के ऊपर बहुत एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट रखेगा। तो वी नीड टू थिंक एवरीथिंग अबाउट इट वेरी केयरफुली। बहुत सारे पेरेंट्स जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, दे वुड ऑलवेज से कि जी हमें टाइम नहीं मिलता अपने बच्चों के साथ स्पेंड करने के लिए, एंड नाउ दैट दे हैव अ लॉट ऑफ टाइम, उनको जो है रियलाइज हुआ है कि इट्स नॉट वेरी इजी टू टीच चिल्ड्रन। जाहिर है पेरेंट्स जो है मोस्ट ऑफ देम आर वर्किंग, स्पेशली सिटीज में। तो वर्किंग पेरेंट्स के लिए बच्चों के साथ टाइम गुजारना इट्स ओके, जब फन करना हो तो इट्स परफेक्टली फाइन, बट व्हेन यू हैव टू डिसिप्लिन देम और टीच देम, तब दे रियलाइज कि टीचर्स जो है वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ईमान का क्वेश्चन ले लेते हैं। थैंक यू सो मच ईमान फॉर ज्वाइनिंग। What should be the maximum duration of an online session for young adults, which ensures learning and doesn't bore them too? So duration कितना होना चाहिए young adults के लिए, और it should be, how can it be fun? Would you like to ओके, take it? Yeah. यस। ईमान, अगर आप नॉर्मल क्लासरूम को देखें तो वी हैव लाइक 40 to 45 मिनट्स इन फेस टू फेस क्लासरूम इन द नॉर्मल सिचुएशन। लेकिन अभी यहाँ ऑनलाइन क्लासेस में बिकॉज हम उस तरह से अभी इसके साथ कंफर्टेबल नहीं है, तो प्रॉब्ली वो 40 to 45 मिनट्स का एक लेसन बच्चों को डिलीवर करना शायद बहुत मुश्किल और बहुत यंग किड्स के लिए तो स्पेशली। तो अगर Hmm. आप उनके साथ 20 to 30 मिनट्स का भी एक सेशन ले लेते हैं जिसमें यू कैन एंगेज देम इन फन एक्टिविटीज, आप कोई भी उसकी उनकी जो है वो हैंड्स आई कोऑर्डिनेशन की एक्टिविटीज करा सकते हैं, आप पोइम्स करवा सकती हैं, आप कोई भी ऐसे फन एंड स्टोरी टेलिंग हो सकती है, इट कुड बी इंटरैक्टिव स्टोरी टेलिंग, इट कुड बी द स्टोरीज ऑफ साइंटिस्ट, जो कि बहुत मतलब ऐसे कि यंग बच्चों को हम बता सकें कोई ऐसी अच्छी स्टोरी जो उनको मोटिवेट करें इस टाइम के अंदर। बट इट शुड नॉट बी बोरिंग और इट शुड बी वेरी इंटरेक्टिव। पपेट मेकिंग की कोई ऐसी चीज हो सकती है कि बच्चे जो काम ऐसा कोई घर पे कर सकें, कोई गेम्स आप उनके लिए प्लान कर सकते हैं। इट कुड बी लाइक मेंटल मैथ के छोटे छोटे से पजल्स जो बच्चे उस टाइम पे शायद सॉल्व कर सकें। तो आपने देखना है कि आपके बच्चे किस चीज में ज्यादा इन्वॉल्व फील करते हैं, क्या चीजें करना उन्हें उस टाइम इस मतलब पसंद है ऑनलाइन क्लासरूम के अंदर, और वो इंगेजिंग भी रहते हैं, तो आप उसको उनको उसके अकॉर्डिंग जो है वो प्लान कर सकते हैं। बट देयर इज नथिंग लाइक अभी स्टैंडर्ड, बिकॉज वी आर शिफ्टिंग अभी पूरे सिस्टम की तरफ, तो हम इसको किसी भी जगह पे मेरे ख्याल स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते अभी के लिए फॉर नाउ। Hmm. यस, थैंक यू सो मच सर। आई लाइक टू ऐड कि यंग अडल्ट्स के लिए जो फन का एलिमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ डिजिटल एनवायरनमेंट में भी बल्कि फेस टू फेस भी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू एंजॉय द लर्निंग। तो टीचर्स को इन जनरल जो कि यंग अडल्ट्स के साथ डेली बेसिस पे इंटरेक्ट करते हैं, आई वुड से कि मेक द लर्निंग फन फॉर देम। और उसके लिए ग्रुप वर्क और पेयर वर्क डिजिटल एनवायरनमेंट के दौरान भी जो है ना वो किया जाए। So although it needs some skills and some time and some familiarity, but how can students interact with each other during a digital classroom? ओके, डिजिटल क्लासरूम में अगर हम जूम की एक एग्जांपल ले लें, सो आपको पता है कि वहाँ पे हर बच्चा जो है वो इंटरेक्ट कर सकता है, बट वी नीड टू इन्वॉल्व देयर पेरेंट्स एट द सेम टाइम बिकॉज स्टूडेंट्स आर नॉट वेरी वेल अवेयर विद द ऐप करंटली।
उनको नहीं पता कि माइक म्यूट और अनम्यूट कैसे करना है। सो देयर आर ऑप्शंस जहाँ पे जाके वो माइक के जरिए से भी अपने क्लास फेलोज के साथ जो है वो डायरेक्ट राब्ता कर सकते हैं, उनसे बोल के बातचीत कर सकते हैं। बट सिमिलरली फॉर द एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी स्कूल अगर बच्चे हैं, अगर आपने कोई ग्रुप टास्क भी कराना है उनको, या हम टीचर ट्रेनिंग की बात करते हैं जहाँ पे हम उन्हें ग्रुप टास्क असाइन करते हैं, तो आप जूम पे अगर जाते हैं, सो देयर इज अ ब्रेकआउट रूम ऑप्शन देयर, जहाँ पे आप उनको ग्रुप्स के अंदर असाइन कर सकते हैं। दे कैन लाइक डिस्कस एनी टास्क असाइन टू देम, और फिर उसमें जो भी टीचर है वो उसको मॉनिटर भी कर सकती है उन ग्रुप्स को जाके कि वो क्या काम उसके अंदर जो है वो किया जा रहा है और टाइम को किस तरह से वो यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आप उसको जो है वो उस पे अगर आपकी जूम पे जैसे ही आप उसको सीखते हैं, तो आपको ये भी पता चलेगा कि आप हर ब्रेकआउट रूम को टाइम के अकॉर्डिंग पहले से ही प्री सेट कर सकते हैं, और वो जितना टाइम आपने उस टास्क के लिए साइन किया होगा, उसके बाद वो ब्रेकआउट रूम्स जो है वो बहुत से बंद हो जाएंगे। एंड यू कैन लाइक ब्रॉडकास्ट टू देम अ मैसेज सिमिलरली, मतलब एक ही टाइम पे जैसे टीचर क्लास में बोलते हैं, बच्चे ग्रुप्स में काम कर रहे होते हैं, तो आप उसी तरह से एक ब्रॉडकास्ट मैसेज छोड़ते हैं जो कि हर ग्रुप में बच्चों को मिल जाता है कि टीचर जो है वो ये बात कह रही हैं। तो प्रॉब्ली चीजें टाइम तो लेंगी, बट ये ऑप्शंस आर देयर। यानी ये डिजिटल एनवायरनमेंट में भी बच्चों के लिए इंटरैक्ट करना और ग्रुप्स में और पेयर्स में काम करना पॉसिबल है। इसके अलावा प्रोजेक्ट्स भी दिए जा सकते हैं। कैन वी गिव देम प्रोजेक्ट्स? इससे बेहतर है कि हम उनको कॉन्सेप्ट दे दें और उसके पेपर देने के बजाय या क्वेश्चन देने के बजाय वही काम को कन्वर्ट कर दिया जाए किसी प्रोजेक्ट में। अब अ व्हाइल अगो मैंने एक प्रोजेक्ट किया था ऑन प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग मुख्तलिफ स्कूल्स के साथ। तो उसमें ये था कि हाउ कैन वी नॉर्मल सब्जेक्ट्स सोशल स्टडीज से लेकर इंग्लिश उर्दू तमाम सब्जेक्ट्स में जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको किसी असाइनमेंट या प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करना। तो उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स सामने आया कि बच्चों को ट्रेडिशनल या बोरिंग तरीके से पढ़ाने के बजाय अगर उस टास्क को बच्चे को रिस्पॉन्सिबल बनाकर उस टास्क को किसी असाइनमेंट में या प्रोजेक्ट में कन्वर्ट कर दिया जाए, जो बच्चे ने 3 डेज में से लेकर 1 वीक तक, या इवन कुछ प्रोजेक्ट्स जो कि टाइम टेकिंग होते हैं, इवन फॉर मंथ्स वो प्रोजेक्ट को चलाए और फिर बाद में बच्चा उस काम को जो उसने लर्न किया है उसको प्रेजेंट करे अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ मिलकर, बाकी क्लासेस के साथ, बल्कि बाकी जो है वो सेक्शंस के साथ, पूरे स्कूल के साथ। तो उससे ये होता है कि एक सेंस ऑफ ओनरशिप और एक सेंस ऑफ अचीवमेंट स्टूडेंट्स में आती है कि उन्होंने ये काम खुद किया है, बजाय कि टीचर सारा का सारा नॉलेज जो है वो बच्चों पे बम्बार्ड कर रहा है और बच्चे उसको ज़्यादा एंजॉय नहीं कर रहे। तो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग इज अनदर वे, Iman, that we can try with young adults. So whatever subject you're teaching, try. आप ऑनलाइन जाकर इसको कर सकती हैं, बट इफ यू थिंक कि आपको मजीद इसके लिए मटेरियल चाहिए तो आई विल शेयर विद यू, जहाँ पे आप यू कैन मेक एंगेजिंग मॉडल्स एंड प्रोजेक्ट्स फॉर यंग अडल्ट्स, जो उनके लिए बहुत फन भी होंगे और लर्निंग भी बहुत, क्योंकि एक्सपीरियंशियल लर्निंग वी ऑल नो कि जब बच्चा खुद एक्सपीरियंस करेगा किसी चीज को तो उसकी लर्निंग कई गुना ज्यादा होगी। व्हाट डू यू थिंक सर? या एग्जैक्टली, और उसमें भी प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग आपने बहुत एक अच्छा आइडिया दे दिया, जहाँ पे भी सुमेरा भी बात करी थी, नो टेक वाली सिचुएशन में भी हम इसको यूज कर सकते हैं करंटली। तो एनीथिंग, एनी सब्जेक्ट दैट स्टूडेंट्स लाइक टू वर्क ऑन, जो उन्हें पसंद है, वो उसमें से भी कोई चीज खुद से पिक कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की एक अच्छी बात है कि आप बच्चों को भी जो है वो सेलेक्ट करने का ऑप्शन जो है वो मतलब दे सकते हैं कि दे सेलेक्ट द टॉपिक ऑन देयर ओन, जहाँ जो जिस भी चीज पे वो काम करना चाहते हैं। एंड द अदर फाइन एलिमेंट इज कि आप उसको उसी सब्जेक्ट के साथ लिंक नहीं करते, वो टॉपिक जो है वो इंटरलिंक किया जा सकता है डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ। यस। तो करंटली अगर हम पोल्यूशन की बात करें, तो अगर हम उसको साइंस की टर्म्स में ज्यादा डिफाइन करते हैं, सो हम उसी को जो है वो मैथमेटिकल टर्म्स में भी किसी ना किसी प्रॉब्लम के सिनेरियो के साथ, तो मैथ से भी उसको जो है वो रिलेट कर सकते हैं। वी कुड रिलेट इट टू ड्राइंग और क्राफ्ट और एनीथिंग, एनी लैंग्वेज, उर्दू और इंग्लिश। सो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की अच्छी बात है कि वो लिमिटेड नहीं करती बच्चों को, उसकी बाउंड्रीज बहुत ओपन है, तो बच्चे बहुत इजीली और बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। और क्योंकि वो अपनी मर्जी से, अपने शौक से वो काम कर रहे होते हैं, तो उसमें जो आपको रिजल्ट मिलेंगे वो बहुत अच्छे होंगे एक नॉर्मल क्लासरूम के कंपैरिजन में। तो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, वेरी वेरी नाइस आइडिया, और इस पे मैं काम कर चुका हूँ कि किस तरह मुख्तलिफ टीचर्स, और इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो मुख्तलिफ सब्जेक्ट के टीचर्स हैं उनको भी पता हो कि ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये बाकी क्लासेस में भी मौजूद हैं। तो अगर वो इस चीज़ को जहन में रख कर टीच करेंगे कि इस टॉपिक को रीइंफोर्स होना है, फॉर एग्जांपल फिजिक्स का टॉपिक है तो उसको केमिस्ट्री में भी कोई टच दिया जाएगा, तो उससे क्या होगा कि उनकी लर्निंग कई गुना एनहांस हो जाएगी। तो इट नीड्स टू बी कि जो टीचर्स हैं वो मिलके काम करें।
अगर वो इस तरह का कोई लेसन डिजाइन कर रहे हैं तो वो एक दूसरे के साथ अपने जो लेसन प्लान्स हैं वो शेयर करें, ताकि बच्चों की जो लर्निंग है वो एनहांस हो सके। थैंक यू सो मच। बहुत सारे आइडियाज जो है वो इस तरह शेयर हो रहे हैं। ग्लैड के लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस मेरे पास ऑलरेडी मौजूद हैं। एक चीज है सेल्फ मोटिवेशन। अब ये स्टूडेंट्स के लिए भी है और टीचर्स के लिए भी, कि नेचुरली डिजिटल एनवायरनमेंट लेस मोटिवेटिंग है फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, और मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा इशू आ रहा है। तो बहुत सारे टीचर्स हैं जो कि दे आर नॉट विलिंग। एक रिसर्च के मुताबिक, जो कि मैंने अपने फेसबुक पे भी शेयर किया था, कि सिर्फ 9% टीचर्स हैं जो कि विलिंगली, अगर उनको प्रेफर करना हो तो वो डिजिटल टीचिंग को प्रेफर करेंगे। 91% कहते हैं कि नहीं जी, हम वी आर मोर कंफर्टेबल विद फेस टू फेस टीचिंग। सो मोटिवेशन जो है उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, एनहेंस किया जा सकता है फॉर एन ऑनलाइन क्लासरूम? मोटिवेशन का जो सबसे बड़ा एलिमेंट मुझे लगता है ना, वो ये है कि अगर आप सक्सेस को देख लें, हम इसको सक्सेस से रिलेट कर सकते हैं मेरा ख्याल है। अगर आप कहते हैं कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो है अगर आप में है तो फिर ही आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर हम हर वक्त जो है वो उसके लिए लेम एक्सक्यूजेस बनाते रहें कि नहीं ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, या हमारे यहाँ ये सिनेरियोज हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, ये इश्यूज हैं, rather than looking at the dark side of the issue, why don't we see at the lighter part of the issue? कि अच्छा अगर हम इस सिचुएशन में अभी फंस गए हैं, हमें इससे बाहर निकलना है, तो what can we do to come out of this situation or to better be like more adaptable with the situation? Why don't we learn new things? और जो भी नई चीजें आप सीखेंगे, for sure it would add to your profile, it would add to your like success, कि आप ये काम भी मजीद कर सकते हैं। तो हमें मोटिवेशन को थोड़ा सा इस तरह देखना है कि अगर कोई भी काम, कोई डिफिकल्ट काम बल्कि जब हम करते हैं तो वो हमारी सक्सेस में कंट्रीब्यूट करता है। और कोई भी Absolutely. चीज जब आप डिफिकल्ट सीखते हैं, तो ये हम सब ने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब हम पहली दफा कोई मुश्किल काम हमसे हो जाता है, जब हम काफी देर से ट्राई कर रहे होते हैं, देन वी फील रियली हैप्पी, हमें अंदर से एक सेटिस्फेक्शन आती है एंड वी लाइक इट कि अच्छा हम कर सकते हैं। तो जो भी Yes. मुश्किल लगे चीज, उसको ट्राई करना बहुत जरूरी है। जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे वो चीज होगी। और मोटिवेशन बाजू का हमें पुश करना पड़ता है अपने आप को, वो डिजायर शायद ये ड्राइव नहीं होती, लेकिन जब तक हम पुश नहीं करेंगे हम उस चीज को अचीव नहीं कर सकते। बट एंड ऑन द सेम हैंड अगर हम बच्चों के लिए बात करें तो फॉर श्योर अभी मोटिवेशन का लेवल अगर टीचर्स का नहीं है तो बच्चों का कैसे डेवलप होगा? तो हमें उनके लिए थोड़ा सा इसको फ्लेक्सिबिलिटी टर्म्स में ही देखना है कि अगर हमने कोई टास्क असाइन किया है, सो वी शुड नॉट लाइक थिंक कि अच्छा अगर मैंने आज दिया तो मैं कल ही इसे वापस ले लूं, या अगर अभी दिया तो अगले 2 घंटों में वो टास्क मुझे जो है वो सबमिट करा दिया जाए। ऐसा नहीं होगा। उन्हें हमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबल टाइम देना है कि आपको ये टास्क सबमिट कराने के लिए 2 दिन है, एंड यू कैन वर्क ऑन इट एनी टाइम यू वांट टू। थोड़ा सा चीजों को हमने उस टाइम में भी देखना है कि मोटिवेटेड रहें। राइट। और सर, आई बिलीव इट्स वेरी फ्यूचरिस्टिक एज वेल। हमें एज टीचर्स और एज ट्रेनर्स हमें समझने की जरूरत है कि ये बहुत जल्द एक कंपल्शन बन जाएगी कि अगर आपके पास डिजिटल स्किल्स नहीं है, अगर आप ऑनलाइन टीच नहीं कर सकते, देन यू हैव नो जॉब। सो ये जो स्किल्स हैं ये अब लाजमी होती जा रही हैं। मैं तो ये कहूँगा कि अगर हम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ इस क्राइसिस को देखें, तो इस क्राइसिस ने हमें फ्यूचर के लिए तैयार कर दिया है। क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे मुल्कों ने, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जिनके साथ हम काम कर चुके हैं, वो ऑलरेडी ऑनलाइन पे स्विच कर चुकी थी, बिकॉज दे नो कि जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन के इश्यूज हैं, लोगों तक एक्सेस के इश्यूज हैं, लोगों की लाइफ्स बहुत बिजी हो गई हैं, तो दे हैड ऑलरेडी स्विच्ड टू ऑनलाइन लर्निंग, और उनके लिए अडेप्ट करना बहुत आसान साबित हुआ। उनको कुछ नया नहीं करना पड़ा। और कुछ ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली जो कि गवर्नमेंट सेक्टर है या जो लो इनकम स्कूल्स हैं, उनके लिए ये चीज बहुत नई थी। लेकिन लेट मी ईज देयर कॉन्शियंस, और लेट मी टेल देम इट्स सॉर्ट ऑफ अ गुड न्यूज। क्योंकि अगर आप इस क्राइसिस से निकल गए और आपने ऑनलाइन टीचिंग और लर्निंग सीख ली और तमाम डिजिटल टूल्स को एक्वायर कर लिया, तो आपने बेसिकली फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ा एसेट अपने अपने नाम के साथ अटैच कर लिया, और बहुत सारी स्किल्स जो आपके स्टाफ के लिए और आपके लिए जरूरी थी वो आपने एक्वायर कर ली। तो समटाइम्स ये होता है ना कि जब आपको आप पे प्रेशर डाला जाता है, या आपके पास एक डेडलाइन होती है, या जब आपको कोई चीज करनी पड़ती है बाय हुक और बाय क्रुक, देन यू लर्न इट क्विकली। सो एक नॉर्मल, एक जनरल एटीट्यूड भी ये है कि हम अपना काम तब करते हैं जब एक डेडलाइन आ जाती है, या जब वो चीज लाजमी करनी पड़ती है, जब कोई और ऑप्शन नहीं होता। तो लेट मी शेयर विद माय डियर टीचर्स एंड ट्रेनर्स कि ये चीज
जो डिजिटल स्किल्स हैं या जो डिजिटल टूल्स हैं वो अब हमें सीखने होंगे। तो हम जल्दी सीख लें तो बेहतर है, क्योंकि फ्यूचर तो यही है। फ्यूचर में ऑनलाइन टीचिंग और ऑनलाइन लर्निंग ही होगी। स्वीटा कह रही हैं, नाइस टू सी यू सर एंड मैम, थैंक्स फॉर सच ग्रेट आइडियाज, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ओके जी। हसनैन कह रहे हैं, वेरी राइट डियर सर, पीपल फील अनईजी to teach and learn online or teaching by using technology. That's absolutely true. Right. I know Hassan जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, और ही अंडरस्टैंड्स के टेक्नोलॉजी पे स्विच करना लोगों के लिए कितना मुश्किल है, लेकिन दिस इज प्रॉब्ली द ओनली चॉइस वी हैव। तो जितनी जल्दी हम स्विच कर लें, जितनी जल्दी हम सीख लें, उतना ही बेहतर होगा। तो great. Or questions, though comments I am, let me go through them, and then I am receiving some questions on WhatsApp as well. So let's go. Yes, time management. ये एक question मुझे receive हुआ है कि it's difficult for teachers to manage their times in online sessions. So फेस टू फेस क्लासरूम में 40 मिनट्स में बहुत कुछ टीच हो सकता है, लेकिन डिजिटल क्लासरूम में कैन यू हियर मी कहते कहते ही आपके 10 मिनट खर्च हो जाते हैं, और इस दौरान जो है बहुत सारे लोग साइड ट्रैक्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं, और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं हो पाते। वही टेक्नोलॉजी के जो लिमिटेशंस हैं। तो हाउ कैन वी मैनेज आवर टाइम ड्यूरिंग एन ऑनलाइन सेशन? आई फील वी नीड टू डेवलप रूल्स। जिस तरह हम अपनी एक फेस टू फेस क्लासरूम में रूल सेट करते हैं ना, इसी तरह हमें कुछ रूल्स सेट करने हैं इस क्लासरूम के लिए भी। वी नीड टू टेल द स्टूडेंट्स, और अगर हम ऑनलाइन ट्रेनिंग की भी बात करें तो वी नीड टू टेल टीचर्स ऑल्सो कि अच्छा ये रूल्स होंगे, हाउ यू आर सपोज टू एक्ट और रिस्पॉन्स इन रिस्पॉन्स टू लाइक पर्टिकुलर क्वेश्चंस और सिचुएशंस और द थिंग दैट यू वांट टू लाइक पार्टिसिपेट, इफ यू वांट टू पार्टिसिपेट इन। तो उसमें हमें उनको थोड़ा-सा सिखाना पड़ेगा, उसके रूल्स एस्टेब्लिश करने पड़ेंगे, उसको प्रैक्टिस कराना पड़ेगा। हम लोगों का जो इस चीज़ में इश्यू आता है टाइम मैनेजमेंट का जो मेजर है, वो यही है कि हम लोग बिकॉज़ फेस टू फेस बातचीत करने के आदी होते हैं, तो हमें उस वक़्त एक बहुत होता है कि प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स चाहिए होता है कि जो बात कही है उसका फ़ौरी से जवाब आ जाए। और आपको जो है क्योंकि आप देख रहे होते हैं कि लोग आपकी उनकी बॉडी लैंग्वेज से आपको अंदाज़ा होता है कि वो आपको कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं या क्या फ़ील कर रहे हैं आपके लिए या लर्निंग टीचिंग की सिचुएशन के बारे में। तो ऑनलाइन में हमें सबसे बड़ी चीज़ जो सीखने को होता है कि ये कि एक तो जब आप बोलते हैं तो इट टेक्स अ लिटिल टाइम जब वो लोग आपको सुन सकते हैं। तो अगर मैं बोलते साथ ही कहूँ कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है, आपको मेरी आवाज़ आ रही है, और मैं इसी को रिपीट करती रहूँगी, तो प्रॉब्ली इट्स गोइंग टू वेस्ट माय टाइम एंड स्टूडेंट्स टाइम एज़ वेल। वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएँगे उसी सिचुएशन के अंदर। सो जब आप ऑनलाइन टीचिंग के ऊपर जब स्विच कर रहे हैं, तो आप छोटे-छोटे से आइस ब्रेकर्स और एनर्जाइज़र्स शुरू में रख सकते हैं, जिसमें यू कैन आस्क देम टू म्यूट एंड अनम्यूट देयर माइक, to on and off their cameras, to write in chat, to say hello by raising their hands or something like this, or by clicking to yes or no or thumbs up and thumbs down things. तो ये थोड़ा-सा उनको आइस ब्रेकर के तौर पर आप शुरू में हमेशा रोज़, मतलब जब आप बहुत इनिशियली इस चीज़ के ऊपर जब स्विच कर रहे हैं, तो आपको प्रैक्टिस कराने की ज़रूरत पड़ेगी। एंड यू नीड टू टेल देम कि मेरी आवाज़ आपको फ़ौरन से नहीं आएगी जब मैं बात करूँगी, और आपकी आवाज़ मुझे फ़ौरन से नहीं आएगी, बट वी कैन हियर यू। तो ये थोड़ी-सी चीज़ें हमें वो नॉर्म्स साथ-साथ सेट करने पड़ेंगे, इन्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, देन वी बेटर वुड बी एबल टू मैनेज आवर टाइम एज़ वेल, आई फील। एब्सोल्युटली। अब टीचर्स के पास जो एक्स्ट्रा कुछ टाइम उनको अवेलेबल हुआ है, मतलब बहुत सारे टीचर्स जो हैं उनकी ज़िंदगी की बड़ी ख्वाहिशात में शामिल होगा कि कोई फ्री टाइम उनको हासिल हो, और अब उनको कुदरत ने फ्री टाइम दे दिया है। ऑल्दो दिस इज़ नॉट द आइडियल सिचुएशन, लेकिन इस फ्री टाइम को कैसे टीचर्स अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हैं? कौन-कौन से कोर्सेज़ हैं जो हम उनको रिकमेंड कर सकते हैं? और कास्ट इस सिलसिले में कौन-कौन से कोर्सेज़ टीचर्स जो अपने फ्री टाइम में कर सकें ऑनलाइन, वो कौन से कोर्सेज हैं जो हमें टीचर्स को रिकमेंड करने चाहिए? Okay, so many other websites are like offering free online courses to teachers right now. So अगर हम generally बात करें तो ब्रिटिश काउंसिल की अगर आप मिसाल ले लें, तो बहुत सारे टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज जो है अभी करंटली करा रहे हैं, हाउ टू बिकम एन इफेक्टिव टीचर, how to deliver online classes, and how to plan online classes lessons. So इस तरह की तमाम चीज़ें, so you have to just go to their pages and like them, और वहाँ पे जो है वो वक्तन फ़वक्तन वो कोर्सेज जो हैं वो ऑफर होते रहते हैं। सिमिलरली देयर आर अदर मेनी वेबसाइट्स जो अभी फ्री ऑनलाइन कोर्सेज जो हैं वो टीचर्स को
दूसरे लोगों को भी ऑफर करें। जो भी आपका पैशन है, जो चीज़ आप चाहते हैं आपकी स्किल इंप्रूव हो, आप उसके ऊपर जो है वो कोर्सेज अडॉप्ट कर सकते हैं। एंड व्हाट कास्ट कैन डू इन दिस सिनेरियो इज कास्ट कैन शेयर द लिंक्स इन द इम्पॉर्टेंट लाइक डॉक्यूमेंट्स विद यू, जहाँ से जो भी आपकी सिचुएशन या आप अपने क्वेरीज या अपने जो है वो जो भी आपके कमेंट्स हैं जो आप चाहते हैं सीखना, आप उसके कास्ट को जो है वो मैसेज कर सकते हैं। एंड कास्ट कैन लाइक प्लान समथिंग ऑनलाइन फॉर यू, and CAS can also refer to some of the good courses that are being offered by some other organization or the online websites. एब्सोल्युटली। और कुछ कोर्सेज जैसे क्लासरूम मैनेजमेंट है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, इंग्लिश लैंग्वेज के कोर्सेज हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स के कोर्सेज हैं, वो हमारे ऑलरेडी कुछ चल रहे हैं। और अगर कोई स्कूल्स या कोई ऑर्गेनाइजेशन करना चाहे तो कास्ट की सर्विसेज हमेशा हाजिर हैं। दे कैन रीच सहर और दे कैन रीच कास्ट डायरेक्टली उनके पेज पर जो कि फेसबुक पर है, और वो उन कोर्सेज से फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सहर। और वी आर ऑलमोस्ट, हमारा टाइम जो है वो कंप्लीट हो गया है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, कुछ और लोगों ने ज्वाइन किया है तो प्लीज आस्क दोज क्वेश्चंस। आई कैन सी सम पीपल हैव जस्ट जॉइंड। इवन इस लाइव सेशन के बाद भी अगर आप इसको देखें और आप कोई क्वेश्चन पोस्ट करना चाहें तो योर क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड। हम रिक्वेस्ट करते हैं सहर से, और मैं भी अगर मुझे लगता है कि मैं कोई क्वेश्चन एड्रेस कर सकता हूं तो आई विल बी एडिंग द रिप्लाईज एज वेल। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने ज्वाइन किया हमें। इट्स अ प्लेजर इंटरेक्टिंग विद यू। It's a big achievement, in a sense, digital achievement for a digital immigrant like me as well, जो कि because I belong to an age where लोगों के लिए digital immigrate करना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये है कि things can be done अगर हम पहला step लें, और हमेशा पहला step ही सबसे मुश्किल होता है। ओके, लास्ट थिंग, हमने कंप्यूटर लिटरेसी पे बात की, टेक्निकल इश्यूज पे, टाइम मैनेजमेंट पे, और मोटिवेशन पे। ऑल राइट, ठीक है। तो वी हैव कवर्ड ऑल द क्वेश्चंस जो मुझे रिसीव हुए थे ऑन व्हाट्सएप। और ठीक है, ऑल राइट। थैंक यू सो मच। बतूल हैव जस्ट जॉइंड अस और वो कह रही हैं डूइंग अ ब्रिलियंट जॉब। थैंक यू सो मच बतूल। और आप ये कह रही हैं तो थैंक यू, मतलब इट मींस अ लॉट कमिंग फ्रॉम यू, और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। ऑल राइट, थैंक यू एवरीवन। अगर आप चाहते हैं कि किसी और एरिया पे हम बात करें तो हमें ज़रूर लिखिएगा, और वी विल हैव अ लाइव सेशन ताकि हम इंटरेक्ट कर सकें, बातचीत कर सकें और लर्निंग के अमल को आगे बढ़ा सकें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। हम एक दफ़ा फिर थैंक्स कहेंगे सहर को कि उन्होंने टाइम निकाला हमारे लिए, और मे बी इन द फ्यूचर हम उनको दोबारा इनवाइट करेंगे ताकि हम उनसे उनके जो एक्सपीरियंस है ऑफ वर्किंग विद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस उससे कोई फ़ायदा हासिल कर सकें। थैंक यू सो मच एवरीवन। आपके जो भी क्वेश्चंस आप इसके बाद पोस्ट करेंगे हम उनको एड्रेस करेंगे। और थैंक यू वंस अगेन। टेक केयर। अल्लाह हाफिज। Thank you so much. थैंक यू Allah सर। Hafiz. Thank you.